It's not Vanderwall, it's Vanderwall. 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 It's not W, it's Vanderder. सर ये आपने पढ़ाया था? वेंडरवॉल शायद नहीं पढ़ाया होगा आपको। एब्सोल्यूट रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, दो रेडियस पढ़ाए थे, वेंडरवॉल कोर्स में नहीं। तो वंडरवॉल क्या है सर? नहीं आया मेरे को समझ। छोड़ दो, अभी है ही नहीं तो फिर क्या। चलो आगे चलते हैं अपने क्लास में। क्लास इज रिकॉर्डेड नाउ। ठीक है। Okay, so children, what is there on your screen? Balancing of a chemical equation. It's balancing of, okay, it's balancing of chemical equation. Now it's your duty to mute your mic, all of you. किसी का भी माइक ऑन रहेगा तो मेरी आवाज आपको नहीं आएगी, ठीक है? So balancing of chemical equation. In the previous class, we studied that a chemical equation must be balanced. A chemical equation must be balanced so as to make it in accordance with law of conservation of mass. So that chemical equation must follow the law of conservation of mass. Because law of conservation of mass is a universal law of chemical reactions. So if your equation is violating the law of conservation of mass, that means your chemical equation is not correct. Therefore, every chemical equation should be written in balanced state. A balanced chemical equation means the number of atoms of each element on reactant side should be equal to number of atoms of each element on product side. That is, number of atoms of each element should be equal on both the sides of a chemical equation. And the process of equating the number of atoms of different element on both the sides of the equation is known as balancing of chemical equation. There are several methods for balancing of chemical equation. These are hit and trial method, oxidation number method, and one more is there, half equation method or ion electron method. Out of these three methods, in class 10, we'll only study first method, that is hit and trial method. Hit and trial method means तुक्का मारो, ठीक है? आपको तुक्का मारने का बड़ा शौक रहता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, इसलिए बोर्ड भी चाहता है कि आप तुक्का मार के रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखें। फिर जो श्योरिटी वाले मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दैट यू विल स्टडी इन क्लास 11. So the process of making the number of atoms of different elements on both the sides of the equation equal is called balancing of chemical equation. It can be done by hit and trial method. The major steps involved in balancing of a chemical equation are as follows. पहले तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा, आपको जो तरीका इजी लगे उस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है? So first step is write the chemical equation in the form of words. Word equation. What do you mean by word equation? A word equation is that equation in which we write the full name of elements and compounds present in a chemical reaction. ठीक है? जो भी reactant है उनका symbol और formula लिखने की जगह पे हम उनका नाम लिखते हैं. When we write the names of reactants and products in equation form, then it is called word equation. जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर. अब इस केस में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहले सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे. वर्ड इक्वेशन लिखने के उनके नेम्स लिखेंगे. नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, लाइक दिस, ठीक है. Then the second step is convert the word equation into a chemical equation by writing symbols and formulae of all the reactants and products. पहले word equation फर्स्ट स्टेप में लिखा. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे,
जो भी वर्ड इक्वेशन लिखा था ठीक उसके नीचे उनके सिंबल्स और फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। नाउ मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स और फॉर्मूले विथ सुटेबल नंबर्स। जो भी फॉर्मूले यूज है चाहे रिएक्टेंट साइड में चाहे प्रोडक्ट साइड में, आपको क्या करना है कि उसके फॉर्मूले के पहले आप नंबर यूज कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 so as to multiply the whole formula, multiply each atom with that number in order to make the number of atoms equal on both the sides. Here is an example given to you. लेकिन हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना आपको कि डू नॉट चेंज द फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स या फॉर्मूले चेंज नहीं करने का मतलब आप नीचे जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं नंबर्स उनको आप चेंज नहीं कर सकते। पूरे फॉर्मूले को आप चाहे तो ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाइड बाई कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन जो सबस्क्रिप्ट में नंबर यूज है उन नंबर से छेड़खानी आप नहीं कर सकते, अदरवाइज द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस विल गेट चेंज्ड। क्लियर? So Yes, sir. okay, so here is an example. The example is iron reacts with water steam to form ferric oxide and liberates hydrogen gas. देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। The word equation for the reaction is iron plus water give rise to ferric oxide plus hydrogen. ये हमने word equation लिख दिया उसका। Now put the symbols or formulae below reactants and products names. The chemical equation for the reaction is iron की जगह पे क्या लिख दिया Fe, water की जगह पे H2O, ferric oxide की जगह पे Fe2O3 और हाइड्रोजन की जगह पे H2। ठीक, in this way we converted the word equation into chemical equation, but this chemical equation is unbalanced. Such unbalanced chemical equations are also known as skeletal equations. जो केमिकल इक्वेशन फॉर्मूले और सिंबल्स के रूप में होती हैं और अनबैलेंस्ड रहती हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम नहीं रहता, दे आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। नाउ द बैलेंसिंग इज डन इन फॉलोइंग स्टेप्स। सर यस सर, ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी इसमें हम लोग जैसे ये ऑक्साइड का मतलब वो नेगेटिव साइन और वो सब यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है और कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए फॉर्मूला बनाओ, कॉपी पेन उठाओ, मैं बताता हूँ उसका चार्ज कहाँ चला गया। ठीक है, आप कॉपी उठाओ, ऊपर लिखो Fe, फेरिक है मतलब Fe ट्राई पॉजिटिव, ठीक है, और ऑक्साइड है मतलब O डाई नेगेटिव, राइट। तो Fe ट्राई पॉजिटिव एंड O डाई नेगेटिव लिख लिया आपने, फाइन। अब इसके बाद Fe3 पॉजिटिव है तो नीचे उसकी बैलेंसी में क्या लिख दो 3 प्लस Fe के नीचे लिखा, O डाई नेगेटिव के नीचे लिख दो 2 नेगेटिव, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe3 पॉजिटिव इंटू 2 नेगेटिव, टोटल चार्ज अगर आप देखें कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 हो गया मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। सो ये हो गया क्या Fe इंटू 2 Fe हो गया यानी Fe2 हो गया, और O इंटू 3 हो गया Fe3। अब ऑक्सीजन Fe2O3 इस तरह से फॉर्मूला बना। चार्जेस में आप देखेंगे 3 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय 2, आयरन एक आयरन में कितना चार्ज है 3 पॉजिटिव, कितने आयरन है 2, तो 3 पॉजिटिव इंटू 2 टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 6, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन में चार्ज कितना है -2, तो -2 इंटू 3 कितना हो गया -6, तो +6 -6 कितना हुआ 0। Therefore we don't write charges while framing the formula. जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो जो ऊपर चार्जेस है उसमें चार्ज मत लिखियो, चार्ज के पहले जो नंबर है वो नंबर लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। वैलेंसी वो नंबर होता है, चार्ज नहीं, चार्ज तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन नहीं करना, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपस में न्यूट्रलाइज होकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर हो गया कोई अगर नेगेटिव नेगेटिव नहीं था पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो कंबाइन ही नहीं करेंगे, बिकॉज
सिमिलर चार्जेस रिपल इच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। जब अपोजिट चार्जेस होंगे तभी उनमें अट्रैक्शन होगा और बॉन्डिंग होगी, तभी कंपाउंड बनेगा। सिमिलर चार्जेस वाले आयंस मिलके कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है सर हो गया। ओके डन। नाउ स्टेप देखिए, पहला आपने इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लिया। अब इसके बाद आ जाइए स्टेप 1, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। माइक बंद कर लो जिसका भी ओपन है, चेक योर माइक्स, म्यूट करो। ओके, सबसे पहले रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को लिख लिया वर्टिकल कॉलम में। कौन कौन से हैं? Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लिए। ठीक, फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। Fe के नंबर ऑफ एटम्स कितना है रिएक्टेंट साइड में? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया। सिमिलरली नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड RHS, देखिए Fe के कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? फॉर्मूला से देखिए O3 है इसलिए 3। ठीक है, दिस विल बी स्टेप नंबर 1 फॉर बैलेंसिंग। नाउ स्टेप 2, on inspection the number of oxygen atoms in the reactants H2O is 1, while in products Fe2O3 it is 3। ठीक है, आप देखिए रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 1 H2O में, और प्रोडक्ट साइड में Fe2O3 में है कितने हैं? 3। ये 3 और 1 को आपको क्या करना है? इक्वेट करना है। इसलिए जिस साइड कम है उस साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिएक्टेंट साइड में 1 है, 3 मल्टीप्लाइड 1 कितना हो जाएगा? 3। तो H2O से पहले, H2O के फॉर्मूला से पहले 3 लिख दीजिए। तो इट विल बिकम 3H2O, मींस ऑक्सीजन एटम विल बिकम 3, और प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 3 है। ठीक है, ऑन इंस्पेक्शन ये देखिए आपने लिख दिया Fe plus 3H2O कर दिया, गिव राइज टू Fe2O3 plus H2। So in this way number of oxygen atoms on both sides becomes equal. Clear? यस सर। Okay, the next step दूसरे एलिमेंट्स के लिए करेंगे। In order to equate hydrogen atoms, put coefficient 3 before H2 on the product side. As a result, hydrogen atom on both sides becomes equal. अब देखिए कैसे, आपकी मेन इक्वेशन क्या थी अनबैलेंस वाली? इधर H2O लिखा, इधर H2O लिखा, दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन एटम है। लेकिन जब आपने ऑक्सीजन 3 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो टोटल हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितने हो गए? 6। 3 into 2 6। इधर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? into 6 into 3 3 2 या 6 हो जाएंगे ना। हाँ into 3 प्रोडक्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइड्रोजन को, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड्स विल बिकम 6। देखिए इधर इक्वेशन में Fe plus 3H2O गिव राइज टू Fe2O3 plus 3H2O हो गया। अब इसके बाद आयरन को बैलेंस कर दीजिए। तो आप देखिए प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं? Fe2O3 में 2 एटम है। रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 1। तो रिएक्टेंट साइड जो Fe लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड 2 2 हो जाएंगे। In order to balance Fe atoms, put coefficient 2 before Fe on reactant side. So the final equation becomes 2Fe plus 3H2O give rise to Fe2O3 plus 3H2। Step 5 क्या होगा? Finally check, एक बार रीचेक कर लीजिए। तो आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे हर एक एलिमेंट को देख लीजिए कि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं कि नहीं। If number of atoms of all the reactants on both sides is equal, then your chemical equation is balanced. But if the question is asked to balance the chemical equation, you are supposed to write the steps. ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने फाइनल स्टेप लिख के बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया। उससे अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, बिकॉज ये स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, आप स्टेप में लैंग्वेज मत लिखिए। स्टेप 1 सीधे ये लिखिए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS, नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS, FeHO 1 to 1 2 to 3, इस तरीके से स्टेप 1 में लिख दीजिए। स्टेप 2 में आप लिख दीजिए बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, सिर्फ इतनी हेडिंग लिखो, बैलेंस कर दिया। फिर स्टेप 3 में बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम, बैलेंस कर दिया। फिर बैलेंसिंग आयरन एटम्स, बैलेंस कर दिया। देन फाइनल इक्वेशन, खत्म।
ये इक्वेशन आपको 4 बार लिखनी है अलग अलग स्टेप्स दिखाने के लिए, तब आपको 3 में 3 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज even though you write the correct answer, final equation balanced, you won't get full marks, because here if there is 3 marks question, at least 3 steps should be there. Am I loud and clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so now I am giving you question to balance. Take out your pen and paper. अभी नहीं, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बैलेंस करिए और बैलेंस करके मुझे बताइए, ठीक है? Yes, sir. The question is, write balanced chemical equation for following reaction. Reaction है aluminium plus copper chloride. Aluminium plus copper chloride. सर फॉर्मूला भी बोल दीजिए। क्यों? तुमको बनाना है, फॉर्मूला नहीं बोलूंगा। चलो मैं क्यूप्रिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। आप फॉर्मूला बनाओ, फिर इक्वेशन को बैलेंस करो। सर रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, एल्यूमिनियम प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। पहले तो करेक्ट सर ये फॉर्मूला तो बैलेंस ही है। हाँ जी सर कुछ नहीं। यस, Al plus 3CuCl equal to Al ClC plus 3CuCl equal to AlCl3 plus 3Cu। आपने ये बनाया, ये गलत है। पूछो क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि इक्वल्स लगा दिया। इट्स नॉट कॉपर क्लोराइड, मैंने आपको बोला क्यूप्रिक क्लोराइड। अच्छा ओके सर। कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ठीक है? सो क्यूप्रस इज Cu पॉजिटिव एंड क्यूप्रिक इज Cu डाई पॉजिटिव, इसलिए क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl नहीं होगा बल्कि CuCl2 होगा। क्लियर? यस सर। बुक में लिखा था, मेरे को पता था कि बुक की हेल्प ली जाएगी, इसलिए हमने चेंज कर दिया, क्यूप्रस की जगह पे कॉपर की जगह पे क्यूप्रिक कर दिया उसको। ठीक, तो क्यूप्रिक सर वर्ड फॉर्म में मत बोलिए सर। मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, आपको फॉर्मूला बनाना है। देखो, तो क्यूप्रस क्या होगा? Cu पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी 1। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन क्यूप्रिक मैंने बोला, इसलिए कॉपर की वैलेंसी क्या हो गई? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuCl2। नाउ Al plus CuCl2 गिव राइज टू AlCl3 plus Cu। अब बैलेंस करेंगे तो टोटल क्लोरीन कितने हैं? 6। सर Six सी chlorine- एक सेकंड सर आपने सर क्या एक बार बोला? वापस बोल दीजिए। इक्वेशन Al plus CuCl2 give rise गिव to राइज टू AlCl3 plus Cu। सर AlCl3। अरे यार 3 क्यों हो गया? इसलिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, मैंने बोला था याद करने के लिए। सर बैलेंस इक्वेशन हाँ बताऊं तो फिर आ से? गया। हाँ मैं बताऊं? हाँ 2Al plus 3CuCl2 हाँ converts to 2AlCl3 plus 3Cu। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, अब ये सही हुआ। देखो Al, सर एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ अभी बता रहा हूँ। Al plus CuCl2 था, आप क्लोरीन सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड, आ जाएगी आवाज, अभी आ जाएगी, डोंट वरी। आने लग गई? यस सर। यस सर अब आ रही है। हेलो, am I audible? Okay, so Al plus CuCl2 give rise to AlCl3 plus Cu। अब आप देखिए क्लोरीन, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट साइड 3 है। इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए 6, दोनों साइड 6 करना है। CuCl2 को क्लोरीन को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 CuCl2, और AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्लोरीन दोनों साइड 6 6 हो गए, इधर एल्यूमिनियम हो गए 2,
तो उधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में AlCl3 में एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो रिएक्टेंट साइड भी 2 करने के लिए 2Al करना पड़ेगा। कॉपर रिएक्टेंट में 3 हो गए, इसलिए प्रोडक्ट में भी 3 करना पड़ेगा। यस सर। अब फाइनल बोलिए एक बार। यस सर। फाइनल हो जाएगा 3CuCl2 Al नहीं, gives rise 2Al। to 2Al। 2Al plus सर मैं बोलूँ हाँ 2Al प्लस 2Al plus 3CuCl2 plus give rise to 2AlCl3 plus 3Cu. Cu। करेक्ट। हाँ, अब समझ सर में ये आ गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? Yes. Yes, this is displacement reaction. Okay, shall I tell you next one? यस Yes सर। sir. यस सर Yes sir. Okay, so write down nitric acid. अरे यार सर ये बनाना नहीं आता ना। तो भैया आए, मैंने इसीलिए बोला था आपको याद करने के लिए, क्या याद करो। हाँ तो याद हो गया। सर- एसिड का क्या होता है हमें कैसे पता है सर? जो भी आयन है उसमें H प्लस जोड़ दिया जाता है, एसिड के लिए H प्लस। क्या ऐड करना है? H प्लस। H प्लस। ओके। और ठीक है। नाइट्रिक और नाइट्राइट एक ही होता है क्या? नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, 3 ही तो एसिड है मिनरल में, HCl, पता है। HNO3 और H2SO4। ठीक है सर बोलिए। HNO3। हाँ, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ठीक है, ये तो 7th के बच्चों को याद हाँ, रहता हो है। गया। तो सर, नाइट्रिक आता है। एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। Take the equation and balance it. सर नाइट्रिक एसिड प्लस क्या था? बैलेंस है। कैल्शियम। बैलेंस है? यस सर। कौन बोल रहा है? नाम बोलो। अरे एकलव्य। एकला बेटा, ये बैलेंस नहीं है। सर सर आपने क्या बोला? कैल्शियम फिर से बोलना। कैल्शियम नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। नहीं है सर। बैलेंस कैसे होगा? रिएक्टेंट सर साइड वेट नाइट्रेट है, प्रोडक्ट साइड 2 नाइट्रेट है। फॉर्मूला सही बनाओ। नाउ बैलेंस। सर वो कैल्शियम नाइट्राइट था कि नाइट्रेट था लास्ट टाइम? नाइट्रेट, नाइट्रेट। NITRATE। सर बन गया। बोलो आंसर बोलो। तो CaOH2 plus 2HNO3 converts to CaNO3 bracket close 2 plus 2HO2 HO2 H2O। H2O। 2H2 सही है सर। यस सर मेरा भी यही है। हाँ। ओके, सर मेरे को नहीं the आया। balance chemical equation would be 2HNO3 plus CaOH whole twice give rise to CaNO3 whole twice plus 2H2O। सर मुझे कैल्शियम नाइट्रेट वाला ही नहीं आया। सर वो कैल्शियम 2 नाइट्रेट जो है, कैल्शियम सर जो नहीं 2 आया है तो वो स्टार्टिंग से NO3 बताइए में ऐड पूरा। होगा। एक सेकंड, सब लोग माइक बंद करो। सर कैल्शियम नाइट्रेट स्टार्टिंग का से फॉर्मूला बनाओ। बताइए। कैल्शियम सर नाइट्रेट का फॉर्मूला CaNO3 2, तो CaNO3 जो है और सर वो 2 जो है वो 3 में होता है इनटू। वो जो होल ट्वाइस लिखा है NO3 होल ट्वाइस, इट इज रेड एज NO3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, जो ऑक्सीजन है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हो गए? N1 into 2 यानी 2 नाइट्रोजन। रिएक्टेंट साइड भी नाइट्रोजन 2 करने पड़ेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 जा 6। ठीक है, अब 6 सर हो गया। स्टार्टिंग से बताइए, मेरे को नहीं आया पूरा स्टार्टिंग यस से। सर। स्नेहा शर्मा। सर HNO3 प्लस CaOH2 प्रोडक्ट तुम लोग अपना माइक CaNO3 नहीं बंद होल करते ना, 2। इसलिए तुमको समझ में नहीं आता। बोलते बहुत हो, बीच में सुनते कम हो।
पहले सुनने की हैबिट डालो, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस मीन्स OH ब्रैकेट में, उसके बाद सबस्क्रिप्ट में 2, CaOH होल ट्वाइस गिव राइज टू CaNO3 होल ट्वाइस, मतलब ब्रैकेट के अंदर NO3 बाहर मल्टीप्लाइड बाई 2, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, दिस विल बी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चलिए देखिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, HNO3 का एक हाइड्रोजन और CaOH होल ट्वाइस के 2 हाइड्रोजन, बिकॉज 2 into 1 इक्वल टू 2, 2 + 1 की टोटल कितने हो गए 3। सर हाँ जी, सर ये कैल्शियम नाइट्रेट में CaNO3 होल ट्वाइस कैसे हुआ? क्योंकि कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है, Ca डाई पॉजिटिव, और नाइट्रेट का क्या है NO3 निगेटिव। कैल्शियम के नीचे वैलेंसी 2 लिखो, नाइट्रेट के नीचे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कैल्शियम इंटू 1 Ca, NO3 इंटू 2 NO3 होल ट्वाइस, वो 2 नीचे लिखना है फॉर्मूला ना? बनाना। हाँ जी, 2 नीचे लिखेंगे ना? हाँ नीचे लिखेंगे सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। कंटिन्यू। अब हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट साइड टोटल कितने हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में है 2, ठीक है, और HNO3 में कितना है 1, जबकि रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है 2। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे कम नंबर पे बैलेंसिंग करना है, मल्टीपल में बाद में जाना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, एक साइड 3 है एक साइड 2 है, अगर हम दोनों साइड 4 कर दें तो हो सकता है बैलेंस हो जाए। 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, और रिएक्टेंट साइड में HNO3 जो लिखा है उसके पहले 2 लिख दीजिए। तो रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, अब प्रोडक्ट साइड 2H2O मतलब 4 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन देखिए, तो रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6, क्यों 2 HNO3 हो गया ना, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 ऑक्सीजन वुड बी देयर ऑन रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो गए, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, हो गए दोनों साइड 8, जब 2H2O कर दोगे तो 8 हो जाएंगे दोनों साइड, तो ऑक्सीजन आल्सो गेट्स बैलेंस्ड। नेक्स्ट नाइट्रोजन आ जाइए, 2 HNO3 करने के बाद नाइट्रोजन कितने हो गए 2 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में CaNO3 में होल टाइज में कितने नाइट्रोजन है 2, नाइट्रोजन आल्सो गेट्स बैलेंस्ड। अब क्या बचा, कैल्शियम, रिएक्टेंट साइड में एक कैल्शियम एटम है, प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो रिएक्शन फाइनल बैलेंस इक्वेशन विल बी 2HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव राइज टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2। गॉट इट? यस सर। सर सबसे पहले किसको बैलेंस करना रहेगा? सबसे पहले कोशिश करो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, इसका एक तरीका और बता सकता हूँ कि सबसे पहले आप उस एलिमेंट को बैलेंस करो जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड, कहीं भी जिस भी एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो उसको पहले बैलेंस करो, उधर से स्टार्ट करो, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर उसके बाद जिसके हैं, फिर उसके बाद जिसके हैं, फिर उसके बाद जिसके हैं, लाइक दिस। दिस विल गिव यू मोर इजी वे फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। सर एक और दीजिए ना। हाँ सर। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ। हाँ, बेरियम क्लोराइड BaCl2, अच्छा फॉर्मूला नहीं बोलूंगा, आपको बनाना है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड
and barium sulfate. ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड and barium sulfate. Now make the balanced chemical equation. सर रिएक्टेंट सर वापस से रिपीट कर दीजिए. बेरियम क्लोराइड यस प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट give rise to एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट. सर आ गया. आ गया, बोलो सर आंसर. यस सर. सर Al2SO4 3 plus 3BaCl2 gives 2 gives sir gives 2AlCl3 plus 3BaSO4. एक्सीलेंट. थैंक यू सर. करेक्ट. यस सर, यही है, सेम सर. ओके, तो यहाँ पे दिक्कत सिर्फ क्या थी, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना. उसके लिए Yes. पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. फॉर्मूला कैसे बनाओगे, पहले एल्यूमिनियम लिखो और एक साइड लिखो सल्फेट. ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, so 3 and 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल गिव Al2SO4 होल थ्राइस. फिर एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Al2 ब्रैकेट में SO4 मल्टीप्लाइड बाय 3. उसको कैसे पढ़ते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, आ गया. तो अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे एक सेकंड, जैसे पिछले वाले में नाइट्रेट था, अभी सल्फेट है, तो आप अलग अलग एलिमेंट बैलेंस करने से ज्यादा अच्छा क्या पड़ता है, पूरे आयन को बैलेंस करने की कोशिश करो. जैसे HNO3 में क्या था, नाइट्रेट. आप देख लो नाइट्रिक एसिड में कितने नाइट्रेट थे, 1. प्रोडक्ट साइड में नाइट्रेट कितने हैं, 2. ठीक है, CaNO3 होल ट्वाइस था, तो कितने नाइट्रेट थे, 2. तो 2 नाइट्रेट करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे यहाँ पे सल्फेट देखिए, Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, सल्फेट कितने हैं, SO4 कितने हैं, 3. इसलिए प्रोडक्ट साइड में भी सल्फेट 3 करने के लिए क्या करो, 3BaSO4 कर दो. ठीक है, सल्फेट, पूरे सल्फेट को ही एक बार में बैलेंस कर दिया एटम की जगह पे. अब इसके बाद फिर क्या, जब 3BaSO4 हो गया, मतलब बेरियम कितने हो गए, 3. रिएक्टेंट साइड में भी 3BaCl2 कर दो, तो अब बेरियम भी बैलेंस हो गया. बचा सिर्फ क्या, क्लोरीन. 3BaCl2 हो गया, मतलब 6 क्लोरीन एटम. 6 क्लोरीन एटम राइट साइड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2AlCl3 कर दो, तो 2 into 3 6 हो गया. ठीक है, अब फिर बचा क्या, एल्यूमिनियम. रिएक्टेंट साइड में Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब 2 एल्यूमिनियम के एटम थे, प्रोडक्ट साइड में 2 करने के लिए 2AlCl3 कर दिया, हो गया बैलेंस्ड. यस. कई बार क्या होता है कि आप पूरा का पूरा सल्फेट, पूरे पूरे पॉलीएटॉमिक आयन को ही एक बार में बैलेंस कर दो, अलग अलग एलिमेंट्स की जगह पे. लिखने को आप इसी पैटर्न पे लिखो जैसे एग्जाम में दिया हुआ है, लेकिन किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो चेक करने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे करके देख सकते हैं. पहले रफ में बैलेंस कर लिया, फिर इस फॉर्मेट में लिख दिया उसको. ठीक है, आप देखो बेटा, एक चीज बताऊं आपको, ये तो एनसीईआरटी का फॉर्मेट हुआ आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए, जिस पैटर्न से आपको सॉल्व करना है. हालांकि आपको इजी लगा होगा, टफ नहीं है. लेकिन एक और तरीका ये बताता हूं कि सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले सही बनाओ. सही फॉर्मूले बनने के बाद ये डिसाइड करो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. ठीक है, ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से ऐसा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिसाइड करो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. ठीक है, उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया. फिर
उसी एलिमेंट चूजन सर? जो आपका, हाँ इस इक्वेशन में ऐसा क्या था किस इक्वेशन में? अभी जो Al2SO4 दिया होता उसमें है, सबसे ज्यादा? Al2SO4 होता है, L2SO4 3 ठीक है। कैसे? अब 3 एलिमेंट्स है ना, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। अच्छा, ठीक है। अब जो आपने जो कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया, उस कंपाउंड को एक स्क्वायर बॉक्स में डाल दो। अब जो चूजन कंपाउंड है उसमें आप डिसाइड करो नंबर काउंट करके किस एलिमेंट के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो Al2SO4 होल थ्राइस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। कितने? 4 3 12। ठीक है, इसलिए पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करो दोनों साइड। जब ऑक्सीजन हो जाए तो उसके बाद दूसरा एलिमेंट जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उसको बैलेंस करो, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर बाद में चौथा एलिमेंट। इस तरीके से करते जाओ, बैलेंस हो जाएगा। दिस इज hit and trial method of balancing chemical equations. Clear? So Yes. in NCERT exercise, a large number of questions are given for balancing. For example, question number 5, sorry, question number 6, question number 7, question number 8. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को बैलेंस करेंगे आज आप होमवर्क में, किसी भी बुक की हेल्प लिए बिना, ईमानदारी से। ठीक है, आप क्वेश्चंस बस लिखना और उसको प्रैक्टिस करना कि बैलेंस कैसे करना है। कोई रेफरेंस नहीं, कोई इधर उधर से नहीं, अपनी ईमानदारी से इन सभी क्वेश्चंस को इक्वेशन लिखना और इसी फॉर्मेट में जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप इसको बैलेंस करना। ठीक है, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज फॉर स्टेप्स। अच्छा, मैं आपको भेज चुका हूँ, भेजा कि नहीं भेजा? पूरा नहीं भेजा सर, पहले नहीं भेजा। बस इसके पहले वाले जो थे उनका स्क्रीनशॉट। ओके फाइन, तो अभी आप इसकी स्क्रीन शॉट ले लो और इसी पैटर्न पे आप बैलेंस करना इसको। अब बैलेंस करके Yes, सारे sir. क्वेश्चंस को कॉपी पे लिख लेना, उसको क्लिक करना और मुझे भेज देना। ठीक है, Yes, sir. in the next class we'll study types of chemical reactions. So I'm coming back to meet